یہ آل انڈیا ریڈیو سری نگر ہے. خبرنامے کے ساتھ میں ہوں سید تجمل قادری. پہلے ہیڈ لائنز. مرکز کی طرف سے میڈیکل امتحانات کے نیشنل بورڈ کے تحت جموں کشمیر کے لیے ڈپلومیٹ کی 265 نشستوں کی منظوری. موسم سرما کے دوران یوٹی کے صارفین کے لیے بجلی کی معقول سپلائی یقینی بنانے کی افسروں کو ہدایت. چیف سیکرٹری نے بیک ٹو ولیج کے حالیہ پروگرام کی حصولیابیوں کا لیا جائزہ. جسٹس جی وائی چندرچوڈ کل ملک کے نئے چیف جسٹس کی حیثیت سے لیں گے عہدے کا حلف. اور پورے ملک کے ساتھ ساتھ وادی میں بھی جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا گرو پورب. اب خبریں تفصیل کے ساتھ. مرکزی حکومت نے جموں کشمیر کے مختلف اسپتالوں میں میڈیکل سائنسز سے متعلق نیشنل بورڈ آف ایگزامینیشنز NBEMS کے تعاون سے نیشنل بورڈ پوسٹ گریجویٹ میڈیکل کی 265 ڈپلومیٹ نشستیں منظور کی ہیں. وزارت صحت کا کہنا ہے کہ توسیعی منصوبے کے پہلے مرحلے میں جموں کشمیر یوٹی کے 20 اضلاع میں اس وقت پوسٹ گریجویٹ کی 250 سے زیادہ نشستیں موجود ہیں، جبکہ دوسرے مرحلے میں مزید 2 پوسٹ گریجویٹ سیٹوں کا بھی اضافہ کیا جائے گا. اس کے علاوہ پی جی کی 50% نشستیں مقامی ان سروس ڈاکٹروں کے لیے مختص ہیں تاکہ ان کے لیے بھی پوسٹ گریجویٹ سطح کی تربیت کا موقع فراہم ہو سکے. وزارت نے کہا ہے کہ اس اہم قدم سے نہ صرف جموں کشمیر کے عام لوگوں کو فائدہ پہنچے گا بلکہ یو ٹی کے ڈاکٹروں کو بھی اپنے ہی علاقے میں تربیت حاصل کرنے کا موقع ملے گا. چیف سیکرٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا نے موسم سرما کے تقاضوں کے مطابق بجلی کی سپلائی یقینی بنانے کے لیے افسروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ سرکاری ورکشاپوں میں ٹرانسفارمروں اور بجلی نظام میں کام آنے والے آلات کا وافر سٹاک کرنے کے علاوہ بجلی ٹرانسفارمروں کا معائنہ کریں. آج جموں میں پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کی ایک میٹنگ میں موسم سرما کی تیاریوں کا جائزہ لیتے ہوئے چیف سیکرٹری نے کہا کہ سرکار جلد ہی بجلی کے سیکٹر میں مساوی بل نظام رائج کرے گی. ڈاکٹر ارون کمار مہتا نے کہا کہ بجلی کا نقصان کم کرنے اور صارفین کے لیے برقی راؤ کی معقول سپلائی یقینی بنایا جانا اہمیت کا حامل ہے. انہوں نے کہا کہ اس مقصد کے لیے بجلی چوری روکنا ضروری ہے. انہوں نے افسروں کو یہ بھی ہدایت دی کہ جہاں کٹوتی کی ضرورت محسوس ہو وہاں اس کا شیڈول پہلے ہی جاری کیا جانا چاہیے. انہوں نے رامبن سے کشتواڑ اور سونمرگ نیز گریز کے لیے ترسیلی لائنوں کو نصب کرنے کے کام میں سرعت لانے کی ضرورت اجاگر کی. انتظامی سیکرٹریوں کے ساتھ ایک علیحدہ میٹنگ میں چیف سیکرٹری نے بیک ٹو ولیج کے چوتھے مرحلے کی حصولیابیوں کا جائزہ لیا. انہوں نے متعلقہ سیکرٹریوں اور ان کے محکموں کو پروگرام کا یہ مرحلہ کامیابی کے ساتھ مکمل کرنے پر مبارکباد دی. میٹنگ میں بتایا گیا کہ پروگرام میں حصہ لینے والے 35 محکموں نے 54 پروگراموں میں 100% نشانہ حاصل کیا ہے، جبکہ اس طرح کی مزید 101 خدمات میں بھی بہت حد تک کامیابی پائی گئی ہے. بیک ٹو ولیج کے مرحلہ چہارم کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں 13,977 ایسے بچوں کا اسکولوں میں دوبارہ داخلہ کرایا گیا جنہوں نے بعض وجوہات کی بنا پر اسکول چھوڑ دیا تھا. پروگرام کے ذریعے 21,329 نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کیے گئے، جبکہ مکانات، ٹرانسپورٹ، ہیلتھ اور پولٹری جیسے سیکٹروں میں 277 کوآپریٹو سوسائٹیوں کا اندراج کرایا گیا. وزیر اعظم کے دفتر میں وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ کل کشمیر ایکسپو اسٹارٹ اپس فار لائیولیہڈ پروگرام کا افتتاح کریں گے. حکومت ہند کے محکمہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے زیر اہتمام یہ پروگرام SKICC سری نگر میں نیشنل انوویشن فاؤنڈیشن انڈیا کے باہمی اشتراک سے منعقد ہوگا. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اس ایونٹ میں جموں کشمیر سرکار کی نمائندگی کریں گے، جس میں ملک بھر کے 55 اسٹارٹ اپس شرکت کریں گے. اس 3 روزہ نمائش میں اختراعی نوعیت کے مصنوعات اور خدمات ایجاد کرنے والے نوجوان بھی اپنے پروڈکٹوں کی نمائش کریں گے. واضح ہے کہ مرکزی سرکار جموں کشمیر خاص طور سے یوٹی کے دیہی علاقوں میں مقامی لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کی لگاتار کوششیں کر رہی ہے اور نمائش اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کل راشٹرپتی بھون میں جسٹس ڈی وائی چندرچوڈ کو ملک کے نئے چیف جسٹس کی حیثیت سے عہدے کا حلف دلائیں گے. وہ موجودہ چیف جسٹس ادے امیش للت کی جگہ لیں گے جو اپنی سروس سے آج سبکدوش ہو گئے. جسٹس چندرچوڈ ملک کے 50ویں چیف جسٹس ہوں گے. موصوف بھارتی سپریم کورٹ میں مئی 2016 میں جج کے بطور تعینات ہوئے تھے، جبکہ وہ الہ آباد ہائی کورٹ کے بھی چیف جسٹس رہے ہیں. انہوں نے دلی یونیورسٹی کے کیمپس لا سینٹر سے LLB کی ڈگری مکمل کرنے کے بعد امریکہ میں ہارورڈ لا اسکول سے جوڈیشل سائنس میں
PhD की डिग्री हासिल की है। गुरु नानक जयंती या गुरपुरब आज भारत और पूरी दुनिया में पूरे मजहबी अकीदत और जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन सिखों के पहले गुरु नानक देव जी के यौम पैदाइश के मौके पर मनाया जाता है, जिन्होंने सिख धर्म की बुनियाद रखी थी। इस साल गुरु नानक देव जी का 553वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। इस रोज दुनिया भर में सिख अकीदतमंद अरदास करते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुरु नानक देव जी की सालगिरह 553वीं प्रकाश पर्व के मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी है। वादी में गुरपुरब की सबसे बड़ी तकरीब गुरुद्वारा छठी पातशाही श्रीनगर में मुनक्कद हुई, जहां सिख अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने हाजिरी देकर शबद कीर्तन की मजलिस में हिस्सा लिया। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्रीनगर की तरफ से अकीदतमंदों के लिए लंगर और दीगर तरह के माकूल इंतजाम किए गए थे। शबद कीर्तन की मजलिस का एहतमाम जिला अनंतनाग, बारामुल्ला, पुलवामा और वादी के दीगर सभी छोटे बड़े गुरुद्वारों में भी था। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर लोगों, खासतौर से सिख बरादरी को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि इस दिन के मौके पर हम सबको चाहिए हम अपने आप को अवाम और समाज की भलाई के लिए वक्फ रखें। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर आर भट्टागर ने कन्वेंशन सेंटर जम्मू में इंफॉर्मेशन और साइबर सिक्योरिटी से मुतल्लिक 3 रोजा वर्कशॉप का इफ्तिताह किया। इसका एहतमाम जम्मू कश्मीर ई गवर्नेंस एजेंसी ने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नेंस के इश्तराक से किया है। वर्कशॉप का मकसद इस मौजू के बारे में जम्मू कश्मीर इंतजामिया के सीनियर सिविल व पुलिस अफसरों को तरबियत और जानकारी दिलाना है। इस वर्कशॉप में तकरीबन 600 सीनियर अफसर बनफसी नफीस मौजूद रहेंगे, जबकि बाकी के 900 अफसर ऑनलाइन मोड पर शिरकत करेंगे। मरकजी सरकार की खसूसी अवामी राब्ताकारी मुहिम के तहत स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के मरकजी वज़ीर मुमलिकत राजीव चंद्रशेखर ने आज जिला रामबन का दौरा किया, जहां उन्होंने पंचायती राज इदारों के नुमाइंदों, तालिब इल्मों और होटल मालिकान के वफूद से बातचीत की। इन वफूद ने वज़ीर मुमलिकत को जिला रामबन खासतौर से पटनी टॉप में हुनरमंदी और सयाहती सलाहियत को फरोग देने की जरूरत, नीज इलाके की तरक्की से जुड़े अमूर के बारे में जानकारी दी। वज़ीर मुमलिकत ने जिला रामबन में मजीद कुछ ITI मंजूर करने का अहद किया। हंदवाड़ा में आज सुबह एक बस को हादसा पेश आने के नतीजे में 28 अफराद जख्मी हो गए। बताया जाता है कि हादसे की शिकार गाड़ी कुपवाड़ा से श्रीनगर की तरफ आ रही थी। वारदात के फौरन बाद जख्मियों को मरहम पट्टी के लिए मकामी अस्पतालों में दाखिल कराया गया। हमारे कुपवाड़ा के नुमाइंदे के मुताबिक शदीद तौर से चंद जख्मी अफराद को श्रीनगर के हड्डियों और जोड़ों के अस्पताल और कुछ को SMHS रेफर करना पड़ा। पुलिस ने एक मामला दर्ज कर लिया है। कैंसर बीमारी के वजूहात और इसके इलाज के बारे में जानकारी आम करने की खातिर कल यानी 7 नवंबर को नेशनल डे मनाया गया। कश्मीर वादी में कैंसर बीमारी की मौजूदा सूरत हाल और इसके मरीजों के लिए दस्तियाब सहूलियात के बारे में जब हमने सिक्किम सौरा के शोबे ऑन्कोलॉजी में तैनात असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हुसैन मीर से बात की तो उन्होंने कहा, यहाँ हम कश्मीर में भी देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों में कैंसर की जो तादाद है वो बिल्कुल बढ़ती जा रही है हर साल। इसके मुख्तलिफ वजह है। एक अहम वजह है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है और लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी बढ़ रही है, क्योंकि कैंसर जो है यूजुअली डिजीज है जो एल्डरली लोग होते हैं। तो जितने आप एजड लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा होगी उतने चांसेस हैं कि कैंसर की जो शरह है वो बढ़ रही है और वो बढ़ेगी। इसमें WHO की ऑलरेडी एक प्रेडिक्शन है कि बाई 2030 कैंसर एक एपिडेमिक सूरत हाल में आ रही है पूरे वर्ल्ड में। सिक्किम में जो है इसको एक रीजनल कैंसर सेंटर का दर्जा था, अब इसको 2016 में एक स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट का दर्जा मिला है। और सिक्किम में हर फैसिलिटी जो है कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए मौजूद है, चाहे वो
डायग्नोसिस से लेके ट्रीटमेंट, हर चीज जो है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए वो स्किन में मौजूद है। तो उस हिसाब से लोगों में ये बात होनी चाहिए कि स्किन में कैंसर का इलाज जो है बिल्कुल जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस के हिसाब से हो रहा है। यह है कि स्मोकिंग जो है एक अहम काज है, करीबन 30% कैंसर का जो मेन काज है वो स्मोकिंग के साथ है, तो स्मोकिंग नहीं होनी चाहिए किसी भी सूरत में। दूसरा है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना चाहिए, जैसे मोटापा को दूर रखना चाहिए, जो फास्ट फूड्स हैं, फैटी फूड्स हैं, उनकी तादाद जो है वो कम करनी चाहिए खाने पीने में, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो ये चीजें जरूरी है कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए। इसी दौरान कश्मीर यूनिवर्सिटी के गांधी भवन में सिक्किम्स के शोबे रेडियो डायग्नोसिस की तरफ से रेडियोग्राफी के आलमी दिन के मौके पर आज एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में डायरेक्टर सिक्किम्स डॉक्टर परवेज अहमद कौल खास मेहमान थे, जिन्होंने मरीजों की निगहदाश्त में रेडियोग्राफर्स की खिदमत को उजागर किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के अवाम की आवाज रेडियो प्रोग्राम का अगला शुमारा इस महीने की 20 तारीख को सुबह 11 बजे नश्र किया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस किस्त के लिए अवाम की तजावीज और आरा तलब की हैं। ख्वाहिशमंद अफराद अपनी तजावीज फोन नंबर 8493085049 या वेबसाइट www.awamkiawaz.jk.gov.in पर पेश कर सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर रूस के अपने 2 रोज़ा दौरे पर मॉस्को पहुंच गए हैं। डॉक्टर जयशंकर आज मॉस्को में रूस के अपने हममनसब सर्गी लावरोव के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। मीटिंग के दौरान दोनों लीडर बाहमी अमूर और मुख्तलिफ इलाकाई और बैन अक़वामी हालात पर वसी तर तबादला ख्याल करेंगे। बातचीत के दौरान तिजारत, सरमायाकारी, ट्रांसपोर्ट और बाहमी लेन देन में कौमी करेंसियों के इस्तेमाल के मामलों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। दोनों लीडर अक़वाम मुत्तहिदा शंघाई ताउन तंजीम और G20 में होने वाले मुज़ाकरात पर तवज्जो मरकूज करते हुए मौजूदा बैन अक़वामी मामलात से मुतल्लिक जायजों पर भी तबादला ख्याल करेंगे। रूस की वज़ारत ख़ारजा के बयान के मुताबिक मीटिंग में एशिया बहरुल खित्ते में सिक्योरिटी के निज़ाम की तश्कील समेत मुख्तलिफ इलाकाई अमूर पर भी गौर ख़ौज़ किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने तरक्की याफ्ता और उभरती हुई मईशतों के दरमियान मौसमियाती यकजहती के मुआहदे पर जोर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि तरक्की याफ्ता और उभरती हुई मईशतों को चाहिए कि वो मौसमियाती बहरान से निपटने के लिए एक मुश्तरका हिकमत अमली के तहत मुत्तहिद होकर वसाइल को भी यकजा करें। मिस्र के शहर शर्मुल शेख में जारी COP27 के सरबराह इजलास के आगाज में उन्होंने कहा कि मुजवजा मुआहदे के तहत तमाम ममालिक कार्बन के अखराज को कम करने के लिए इजाफी कोशिशें करेंगे। आईसीसी T20 क्रिकेट आलमी कप में कल सिडनी में पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में एडिलेड में भारत इंग्लैंड के साथ खेलेगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक जुमेरात को दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। सेमीफाइनल में जीतने वाली टीमों के दरमियान इतवार को मेलबर्न में खिताबी मुकाबला होगा। गुज़श्ता इतवार को मेलबर्न में अपने आखिरी लीग मैच में भारत जिम्बाब्वे को हराकर सरफहरिस्त आ गया था। भारत अपने ग्रुप के लीग मरहले में 4 मुकाबले जीतने वाली वाहिद टीम थी, जिसने 2 शुरुआती मुकाबले जीते और अपने आखिरी लीग मैच से पहले ही भारत ने सेमीफाइनल में अपना मकाम बना लिया था। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश या बर्फबारी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 11.7 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्जे हरारत 4.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में दिन का ज्यादा से ज्यादा 29.4 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्जे हरारत 13.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह से लेह में दिन का ज्यादा से ज्यादा 9.4 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम -5.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म।